So in my last class we were talking about the introduction of social constructivism, and we learned that there are 2-3 claims which are being made by social constructivists, and they believe that these claims they are not being made by other theories as well. The very first thing is they believe that जो वर्ल्ड है दैट इज़ बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड. इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड मीन्स के देर इज़ अ डायरेक्ट इंटरप्ले ऑफ agency on structure and structure on agency. Both are interdependent, and this is how the world is basically being constructed. So what they are basically going to negate with this this phrase कि they don't believe like realist के जो neo realist कहते हैं the world is anarchy is permanent. It is the permanent feature of international relations, and there is a mechanistic laws. Anarchy is going to force the state to behave the way state they are behaving in today's world. तो ये एक बात है इसके ऊपर, लेकिन ये कहते नहीं दिस इज़ नॉट द केस. देयर इज़ नो द इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ नॉट फिक्स्ड, ह्यूमन नेचर इज़ नॉट फिक्स्ड, रादर द वर्ल्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. सो इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर socially constructed. So this was the one claim that was very important, and the very next claim that is being made first time by social constructivists was related to the interplay of ideas on interest, and the interest there in the influence of interest on ideas and influence of ideas on interest. So there is again the interplay. ये भी इससे पहले किसी ने बात नहीं की है, and they further evaluate and have the analysis how norms, cultures and institutions they are going to affect international politics. So these were the two things. अच्छा, अब इसके ऊपर you might be having some idea के somehow liberals they were having their they were also having the role of ideas in international relations. You people have talked about the new liberal internationalism, जिसके अंदर it was claim के role of ideology is very important. तो somehow they also discuss. और इसके बाद अलावा you have also seen के critical theory first time is known as a theory dealing with the ideational realm of international relations. लेकिन I have already told you that they were talking in different perspectives. So the perspective of social constructivists is totally opposite to the constructivists being shared by liberals or critical theory. Somehow आपने एक जगह पे देखा होगा कि realists they also deal with ideas, लेकिन their dealing with the ideas is very limited in scope. वो बहुत limited है. अच्छा, इसके बाद जो हमने बात की एक तीसरा claim which was basically being made के they believe international relations they are based on ideas. So ideas come first and then the material things come later. Ideas are prior to the material entities. और जो रियलिस्ट को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, रियलिस्ट बिलीव के द वर्ल्ड इज़ एनार्की, मटेरियल कैपेबिलिटीज़ बेसिकली डिटरमिन योर प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो वो उसकी जो बात करते हैं उसको ये दे आर गोइंग टू नेगेट करते हैं. दिस इज़ नॉट द केस. एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर नॉट बेस्ड ऑन द मटेरियलिस्ट कैपेबिलिटीज़, दे आर बेस्ड ऑन आइडियाज़, एंड आइडियाज़ इन्फ्लुएंस द रोल ऑफ, क्योंकि आइडियाज़ ये सब्जेक्टिव बिलीव्स हैं, और सब्जेक्टिव बिलीव्स जो हैं दे चेंज फ्राम टाइम टू टाइम. दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर गोइंग टू बी चेंज, और वो चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ. तो ये जो चीज़ थी. इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे बिलीव दैट दे आर होल्डिंग अ मिडल पोजीशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस. मिडल पोजीशन वो टू लर्न टू नो व्हाट इज़ मेंट बाय द मिडल पोजीशन. आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास दैट it is all about the debate on the it is all about the discussion on the great debates in international relations. The first great debate was all about the ontological things. Then the second great debate was methodology and approach. The third debate के बारे में जिसको ऑल वेबर ने कहा कि it was all about the neo something related to the discussion of कि whether state is going to have relative gains or absolute gain, what is the role of state, whether state is important or not, or other entities they are also important वगैरह वगैरह की. लेकिन जोसेफ लिपर ने कहा नो दिस इज़ नॉट द केस. दे वांटेड टू ब्रिंग विद इन द डोमेन ऑफ थर्ड डिबेट 3 important things: the ontological underpinnings, the epistemological underpinnings and methodological. So यहाँ पे there is a difference of opinion with reference to the validity of third debate in international relations and with reference to the subject matter. ये उस चीज़ की बात करें. लेकिन जो फोर्थ डिबेट है विच इज़ बेसिकली बीइंग कंसीव्ड बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दैट के दे आर होल्डिंग अ मिडल पोजीशन. दे आर होल्डिंग अ मिडल पोजीशन बिटवीन टू स्टूल्स, फॉलिंग बिटवीन टू स्टूल वाली जो बात है कि वो क्या है कि रैशनलिस्ट, पॉजिटिविस्ट एंड रिफ्लेक्टिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट की दरमियान की मिडल पोजीशन. सो इसका मतलब है कि दे आर आल्सो गोइंग टू टेक समथिंग फ्राम द ट्रेडिशनलिस्ट, दे आर आल्सो गोइंग टू टेक सम आइडियाज़ फ्राम
reflectivist, and they are not going to take side of any of these poles. ये इसकी नहीं लेते हैं, बल्कि they are standing in the middle, और वह इसी वजह से they believe कि they are holding a middle position. So these were the things, very important things that we learned in my last class. And उसके बाद we started to talk about the assumptions. assumptions के ऊपर हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, एंड assumptions जो हमने थी उसके ऊपर हमने देखा कि जैसा कि मैंने आपको बताता जब लास्ट क्लास में बताया था कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ नॉट बेसिकली theory in its true meaning, rather it is basically considered a approach. It is basically considered an approach which is having its boundary being crossed over to the other branches of knowledge. और इसी वजह से ये जो इसकी जो assumptions है, they are not going to make the concrete sense as we used to derive from the assumptions of different other theories. ऐसा नहीं है, लेकिन somehow देख लिया हमने कि किस किस्म की बात they are going to talk. For instance, with reference to the assumptions they talk about के जो traditionalist theory थी, more specifically the rationalist जो theory थी, they usually they believe कि world is out there, objective laws could be deduced from the working of the world, and this is how, after the understanding of this world, we can explain the phenomena what is going on in front of us, and this is how, when we are going to explain the phenomena, we are going to have an access to truth and reality, and objective laws are there, and reality could be achieved just through the objective laws, means through the scientific means. So their understanding, they explain their understanding in terms of explanation. जो understanding है, that is something related to the explanation of phenomena. लेकिन when it comes a matter of what you call social constructivists, they believe के ये जो it is all about the subjective motives and the world views of the actors which are more important. और इस चीज़ की वजह से they believe के their understanding of the world could be just described, not explained, and explanation is all about the quant, and description is all about the qual, and here you get something from the objective world and then you get something out of the subjective world. This is something that you are going to explain more specifically, and somehow in some cases you also try to explain, लेकिन most of the time their bent of mind is all about the description of their understanding of this world. So ये जो चीज़ें हमने last class में देखा था, उसके बाद you are having a better idea what is meant by the interplay between the agent and structure. ये एंथनी गिडन का जो आइडिया था स्ट्रक्चरेशनिज्म, वो हमने देखा था कि जो एक्शन है is basically being constant by structure is ultimately being reproduced by action, and then action is basically going to change the structure. So there is basically the direct dependence, they are mutually depending on each other. उसके बाद we have also talked about कि with reference to the middle position in international relations, ये जो अभी तक हमने जो बात की थी, that was all about the critical realism, the philosophy of critical realism. जो इसका रॉय भास्कर was the main proponent behind this philosophy, and Roy Bhaskar was of the opinion that if we people are willing to have a better idea of the international world, then we have to do what? We have to find the interface, the middle position where the philosophy of science is going to meet with the philosophy of social science, and this is how we can have a better understanding. If we people are going to have just one idea okay, through the objective science, as a scientific means, we can have an access to truth. This is not again workable, and if we believe that it is all about the subjective beliefs, and the beliefs they change, so that's why the world is socially constructed. So if we are going to understand the motives of the actors only, then we can make sense of the world. Again, this is not workable. We have to find the middle position where these two philosophies, they are going to intervene, they are going to meet with each other in order to make the better sense of the world. तो रॉय भास्कर का ये आइडिया था, ये जो हमने देखा. उसके बाद हमने देखा कि ideas, since they play, there is more role of ideas in international politics. Ideas, they are prior to the material things. These are the ideational nature of international relations, which is more important rather than the material capabilities. तो इसकी वजह से they focus more on the role of ideas in international relations. और ideas के बारे में यूँ को ideas, if ideas get changed, then ultimately system would be changing. So ideas define the meaning of material things. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि these are the ideas which give meaning to the material capabilities. उसको देते हैं. Ideas are the mental beliefs. Ideas are the mental constructs. These are the attitudes that provide orientation to the for the behavior and policy of actors. So ideas, they are very important. अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत important खातून हैं नीना टेनिडवाल्ड, उसने ideas, the role of ideas in international politics के ऊपर किरदार अदा किया था.
उसने उसका बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया है नीना टेनिनवाल्ड। उसने कहा था कि 4 किस्म के आइडियाज़ हैं जो सम हाउ एवरी आइडिया इज़ हैविंग इट्स रोल वाइल मोल्डिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसका नीना टेनिनवाल्ड वाज ऑफ द ओपिनियन के there are 4 kind of ideas, and very first idea is related to the ideology. Ideology reflect the social needs. So जो भी दुनिया में जो ideology होती है वो social need को reflect करती है और इसकी acceptability होती है, only then it get flourish. दूसरी नीना टेनिनवाल्ड का ओपिनियन था कि जो एक और किस्म का आइडिया है दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स बिलीव्स। ये प्रिंसिपल्स क्या है? नॉर्मेटिव बिलीव समथिंग वेरी एटीट्यूड, समथिंग वेरी सब्जेक्टिव के इट इज़ ये जो बिलीव्स हैं, ये जो आइडियाज़ हैं, दे इनेबल दी एक्टर्स टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। तो ये दूसरे किस्म के आइडियाज़ हैं और ये भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। और दूसरा है काजल बिलीव्स। ये आइडियाज़ हैं। आइडिया की तीसरी किस्म है नीना टेनिनवाल्ड इज़ ऑफ द ओपिनियन ये जो काजल बिलीव्स हैं दे प्रोवाइड strategies on how to achieve objectives. ये they provide strategies to actors to how to achieve their objectives. और जो फोर्थ जो थिंग है, जो फोर्थ काइंड ऑफ जो आइडिया है, जो नीना टेनिनवाल्ड कहता था कि आइडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड आइडिया दे आर प्रायर टू दी मटीरियल थिंग्स, उसके अंदर जो फोर्थ काइंड ऑफ आइडिया है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस. Policy prescription help the policy maker by giving them the particular solution to their problems. वो किस तरीके से ये जो पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शंस हैं ये एक्टर्स को एनेबल करती है टू फाइंड आउट दी सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय देम. सो नीना टेनिनवाल्ड का ये मानना है कि आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है और ये जो वर्ल्ड सोशली कंस्ट्रक्टेड है इसमें आइडियाज़ चेंज होते हैं तो सोशली वर्ल्ड भी चेंज होती है. सो इज़ द केस विद इंटरनेशनल रिलेशंस. आइडियाज़ चेंज होते हैं तो स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम चेंज होता है. और 4 किस्म के आइडियाज़ हैं विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. अच्छा, इसके ऊपर ये जो मैंने जल्दी से चीज़ें आप बताने की कोशिश की है, इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों का कोई क्वेश्चन ले पाऊँ कम्स गाइस, उसके बाद हम आगे चलते हैं. द नॉर्म्स दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और नॉर्म्स या ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. I believe that they are having some sort of obsession with the role of norms in international politics. वो हर चीज़ को they believe कि these are ये norms हैं. और norms वो कहते हैं कि some norms they are being adhered, they are being practiced, they are being followed, and some norms they are being broken. जो कुछ norms break भी की जाती हैं. तो इसका मतलब ये है कि if the norms they are being broken, अगर उनको तोड़ा गया है तो इसका मतलब ये है कि norms they are not existing. If the norms they are being broken, इसका मतलब ये है कि norms were existing, that's why they are being broken. तो इसमें norms they are very important. और जो norms हैं क्योंकि उनकी social quality है, they exist और वो exist करती हैं. एंड ये जो norms हैं, अच्छा ideas they play an important role in the construction of norms. ये बड़ा एक इन्होंने ऑर्गेनिक किस्म का relationship they have tried to construct between the role of ideas and norms. और इसके अंदर से इसी वजह से दे बिलीव के नॉर्म्स दे आर वो. और नॉर्म्स जो हैं, आइडियाज़ दे आर एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्म्स एंड नॉर्म्स दे हेल्प टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस. और इंस्टीट्यूशंस एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास दे आर 2 काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ऐसी नॉर्म्स जो दे आर बीइंग कोडिफाइड, दे आर इन रिटन फॉर्म एंड पीपल दे आर सपोज टू फॉलो. तो ये उसको हम उन इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन वो हैं विच आर द स्टेबल पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस. ऐसी नॉर्म्स जिनको स्टेबली अंदाज में दे आर बीइंग प्रैक्टिसेस अगेन एंड अगेन बाय द आफ्टर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उनको और रेपिटेशन में आती हैं एंड दे गेट द एक्सेप्टेबिलिटी एंड द रिकग्निशन ऑफ द पीपल. और ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, फैमिली स्ट्रक्चर जितना भी है हमारे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है. अब जो भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंस्टीट्यूशंस दे आर अटैच विद द फिनोमिना इज़म. व्हाट इज मेंट बाय इनम, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, अब जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है वो किस तरीके से होता है. अब वो उसके अंदर जो प्रोसेस जो प्रोसीजर अटैच विद द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 2 चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं. एक तो डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस हैं और दूसरा है अडॉप्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस हैं. तो प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस दे आर अटैच विद टू थिंग्स. दैट इज समथिंग, वन इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस. और उसको कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मोर एंड मोर पीपल दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड देयर इज़ नोबडी दे आर गोइंग टू चैलेंज देम, देन अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं एंड दे आर बीइंग इंटरनलाइज एंड दीज डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस दे गिव आइडेंटिटी टू पीपल. और ये लोगों को आइडेंटिटी देते हैं. इसके बाद
जो अगला है अडॉप्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस, जिसको सोशलाइजेशन देते हैं। ये दोनों चीज़ें हों तो द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है वो जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो हर किस्म के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को नहीं देखते हैं। वो उसके अंदर एक हमने लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी हमने देखा है, इसके अंदर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी देखा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म है। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे आर मोर कंसर्न विद द रोल ऑफ नॉर्म्स इन द क्रिएशन ऑफ द definite pattern of practices and the adoption of those definite pattern of practices. Only then the process of institutionalization would be coming into in the state of existence. अब वो आएगा, otherwise नहीं। उसके बाद norms से they are also have an analysis of how norms they are going to play their influence and impact on the role of rather the creation of interest, and how interest they affect norms and how norms they affect and impact किसको इंटरेस्ट को। लेकिन इंटरेस्ट के बारे में दे बिलीव के पहले वी हैव टू हैव एन एनालिसिस कि हाउ इंटरेस्ट दे आर बीइंग फॉर्मुलेटेड, उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगेन देयर इज़ रोल ऑफ आइडियाज़, देयर इज़ रोल ऑफ नॉर्म्स एंड देयर इज़ अल्टीमेटली द रोल ऑफ सोशलाइजेशन, जिसकी वजह से इंटरेस्ट दे आर बीइंग क्रिएटेड। और उसके बाद फिर वो ये जो सेकंड थिंग है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के कि ये कहते हैं कि ये किस तरीके से कौन कौन से इंटरेस्ट हैं जो क्रिएशन के बाद इंटरेस्ट जो आइडियाज़ जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स को इफेक्ट करते हैं, और कौन कौन कैसे नॉर्म्स आइडियाज़ को, और इसकी मेथोडोलॉजी उसकी प्रोसीजर्स को दे हैव एन एनालिसिस, उसका एनालिसिस करते हैं। और फिर वो देखते हैं कि किस तरीके से नॉर्म्स और जो इंटरेस्ट हैं दे इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन एक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है दैट इज़ रिलेटेड टू दी जो रोल ऑफ लैंग्वेज विद रेफरेंस टू डिस्कोर्स। अब यहाँ पे हमें कहीं पे नज़र आता है, ऐसे लगता है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी विद क्रिटिकल थ्योरी इन अ वे के जर्गन हबरमास यूज्ड टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ डिस्कोर्स एंड जो लिंक लेटर जो उसके बाद हमने पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर भी रोल ऑफ डिस्कोर्स देखा। तो ये लेकिन ये जो डिस्कोर्स है जो क्रिएशन ऑफ जो डिस्कोर्स है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का दैट इज़ more close to the critical theory, लेकिन when they are going to have an analysis of discourse then they are more close to the postmodernist। तो ये दोनों से चीज़ें बारो करते हैं। डिस्कोर्स का मतलब क्या है, ये जो डिस्कोर्सेस से रिलेटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चलता चलूँ कि ये जो डिस्कोर्सेस हैं ये कहते हैं कि डिस्कोर्सेस प्ले ये क्रिटिकल थ्योरी का आपको पता है कि व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट दी डिस्कोर्सेस दे वर मोर कंसर्न विद रेफरेंस टू द केयरफुल यूजेस ऑफ लैंग्वेज, इंटरसब्जेक्टिव नॉलेज की जब वो बात करते हैं कि they were of the opinion that they would be creating an ideal speech situation and that ideal speech situation will be created with the careful usage of language and discursive ethics का इस्तेमाल होगा, and this is how the two rival parties they will try to resolve their conflicts amicably, and the institutional frameworks they would be ensuring that powerful will cease to powerful and weaker will cease to weaker, rather when they would be sitting on a platform and no everybody would be dealing with each other on the basis of what you call the equal terms के ऊपर। तो ये जो डिस्कोर्स का रोल है यहाँ से सोशल ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने डिस्कोर्स का लिया वो इंटरसब्जेक्टिव से लिया है। क्रिटिकल थ्योरी के अंदर भी ये इंटरसब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग थी, और यहाँ पे जैसा कि मार्क्स वेबर ने भी कहा था कि ये जो सोशल वर्ल्ड है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो इनका जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये वेबर का भी आइडिया बारो कर रहे हैं और क्रिटिकल थ्योरी का भी कर रहे हैं, और इसको समहाउ उसको लेते हैं इंटरसब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। और इंटरसब्जेक्टिव वो कहते हैं जो वर्ल्ड है वो बेसिकली जो क्रिएट हो रही है सोशल वर्ल्ड इट इज़ नॉट बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव कैटेगरी, इट रिलाइज ऑन कन्वेंशन, इट रिलाइज ऑन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस विच आर बीइंग एक्सेप्टेड एट लार्ज, इसको माना जाए। और ये प्योरली ये तो ना ही ऑब्जेक्टिव है और ना ही ये प्योरली सब्जेक्टिव है, बोथ आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। मैं आप इसको एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे के बताता हूँ आप लोगों को। ये जो आपने कोपेनहेगन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का आपने नाम सुना होगा जो आगे जाके हम करेंगे, तो वहाँ पे ऑल वेबर का काम है विद द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइजेशन।
तो जो प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन है वो ये कहते हैं कि ये इंटर सब्जेक्टिव है, यानी कि ये ना तो इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव और ना ही ये क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव है, बल्कि ये ना तो ये ऑब्जेक्टिव थ्रेट परसेप्शन है, ना ही ये सब्जेक्टिव थ्रेट परसेप्शन है। ये उस वक्त क्रिएट होता है जब दो या दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं दे ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। और ये है, तो ये जो इनका जो कॉन्सेप्ट जो डिस्कोर्स है ये इंटर सब्जेक्टिव है, इट इज़ नॉट प्योरली सब्जेक्टिव, ये एक बंदे का नहीं है, इट इज़ नॉट प्योरली ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैकेनिस्टिक लॉज के अंदर होता है, ऑब्जेक्टिव साइंस के अंदर होता है। ये जो डिस्कोर्स है ये उसकी जो डिस्कोर्स का जो वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं इन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके अंदर दे बिलीव दे टॉक के ये जो डिस्कोर्स दैट इज़ रिलेटेड टू दी इंटर सब्जेक्टिव जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है। इससे दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टेड एंड पीपल दे गिव मीनिंग टू देयर इंटरेक्शन, दे गिव मीनिंग टू देयर एक्शंस, और इससे द वर्ल्ड की क्रिएटर होती है। और ये इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ प्योरली इंटर सब्जेक्टिव। बच्चों ये मेरी बात समझ आई है, मैं क्या समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर आप लोगों को, बताइए अगर ये समझ आई है तो आगे चलूँगा। बच्चों ये मेरी बात समझ आई है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ? हेलो, कोई है इस देर? जी, क्या कहना चाह रहे हैं ये? सदाकत क्या कहेगा, नाइमा क्या कहेगी, समन मजीद, जमीला, फातिमा, यशफा खान? जी बच्चों, अच्छा, और जो फिर दोनों जो पोल्स हैं दे आर कमिंग अप विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, और दे क्लेम के नॉलेज इज, एक ग्रुप कहता है नॉलेज इज़ अचीवेबल, एक कहता है नॉलेज इज़ नॉट, जो ट्रुथ है जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है वो अचीवेबल है, दूसरा कहता है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इज़ नॉट अचीवेबल। ठीक है नाइमा बच्चे, आर यू ऑनलाइन? अच्छा, तो और कौन बताएगा? जांशिया खान? और जांशिया को समझ आ रही है क्या कह रहे हैं हम, क्या बातें कर रहे हैं हम? अच्छा चलें जी, ज़बरदस्त। तो और अनस बताओगे कुछ, क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है हमारी इससे, या हो भी नहीं रही कि नहीं हो रही? अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके गाइस, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज देयर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। एक इसको कहते हैं कन्वेंशनल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं इसको, और दूसरे को हम कहते हैं क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं हमारी बुक में ज़्यादातर बेसिकली उन्हीं लोगों का डिस्कस किया गया है, और उसके अंदर जैसे कि वेंट है, पीटर कैसिस्टीन है, इमानुअल एडलर है, माइकल बार्नेट है, ये वो लोग हैं कि ये दे आर एसोसिएटेड विद दी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसके साथ अटैच हैं। वो ये कहते हैं सोशल, ये जो स्कूल है, जैसा मार्क्स वेबर भी ये कहता था कि नॉलेज जो है वो फिल्टर होता है हमारे सब्जेक्टिव बिलीफ से, तो इनका भी ये कहता है, ये कहते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड हैव द एनालिसिस ऑफ एनी सोशल एक्शन वी नीड टू इम्प्लाई इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। हमें इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ती है, जैसे कि पहले ये मार्क्स वेबर का ये पहला का आइडिया था। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, इस नोशन को। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि हमें पता है कि इंटर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए तो नॉलेज क्रिएट हो सकता है, लेकिन नोशन ऑफ जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ऐसा ट्रूथ जो फाइनल ट्रूथ है एंड विच इज़ परमानेंट एंड विच इज़ ट्रू अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ये अचीवेबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इज़ नॉट अचीवेबल, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अचीवेबल नहीं है, लेकिन इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग से जो नॉलेज क्रिएट होता है वो हो, तो इसलिए वो कहते हैं दे डू मेक क्लेम्स अबाउट द ट्रूथ, वो क्लेम्स करते हैं ट्रूथ के ऊपर, लेकिन वो ये कहते हैं कि देयर ट्रूथ इज़
समथिंग सब्जेक्टिव एंड और ये कंटीजेंट है एंड इट इज़ सिचुएशन स्पेसिफिक एंड इट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। यहाँ पे दो चीज़ों की बात करने की कोशिश की मैंने आप लोगों के, अगर मैं बता पाऊँ, मैंने जैसा कि बताया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, एक है कन्वेंशनल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक है क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट जो है माइकल बार्नेट है, पीटर कैसिस्टीन है, मैनुअल एडलर है, इस तरह के जो लोग हैं वो तो एक चीज़ तो मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इज़ नॉट अचीवेबल, नहीं है, और ऐसा ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ऐसा फाइनल ट्रुथ जो ट्रू हो एंड अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस और इट इज़ अनचेंजिंग हो और फाइनल हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं हम भी क्लेम करते हैं, लेकिन हमारा जो क्लेम है इट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट के साथ है, और वो कहते हैं और उससे हमारे ये होते हैं, लेकिन दे आर कॉन्टीजेंट एंड पार्शियल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वर्ड। वो सारा नहीं है, वो फाइनल नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, वो सिचुएशन स्पेसिफिक है। और ये लेकिन अलबत्ता नॉलेज कॉन्टेक्स्ट सोशली कंस्ट्रक्ट होता है और इसकी खास इंपॉर्टेंस है और कॉन्टेक्स्ट के साथ स्पेसिफिक है। लेकिन जो ये जो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट हैं वो ये कहते हैं ट्रुथ क्लेम्स इन ईदर वे दे आर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। उसकी वजह क्या है, कोई न्यूट्रल ग्राउंड है ही नहीं जिसके ऊपर ट्रुथ कुड बी क्लेम्ड, क्योंकि ट्रुथ जो है दैट जो नॉर्म्स में हैं, जो बेसिकली उनका ये मानना है कि दे बिलीव कि ये जो जिसको हम ट्रुथ कहते हैं इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू दी डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट दी वर्ल्ड, चाहे वो पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। जो ट्रुथ जो है वो अचीवेबल नहीं है, ट्रुथ का क्लेम किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो ट्रुथ है इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट दी वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कोई न्यूट्रल ग्राउंड तो है नहीं ऑन विच वी कैन क्लेम दैट देयर इज एन बेसिकली ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एंड देयर इज बेसिकली अ फाइनल ट्रुथ एंड द ट्रुथ विच इज़ परमानेंट एंड फाइनल अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस। तो जो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं भाई कोई न्यूट्रल ग्राउंड है ही नहीं जिसके ऊपर हम ये कर सकेंगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं, ये भी कहते हैं इनका भी कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कहते हैं और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? उसके बाद खैर आगे चलते हैं। अब बहुत ज़्यादा अब ये थीम्स को ज़रा देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और दो तीन चीज़ें, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, इनकी खास लिमिटेशंस हैं, उसी के अंदर रहते हैं। हाउ दे परसीव। अब आपको पता चलेगा जो हमने असम्पशंस के अंदर देखा था कि रोल ऑफ नॉर्म्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियाज़ हेल्प टू क्रिएट नॉर्म्स, जो नॉर्म्स हैं दे इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब ज़रा देखें क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिए। वो ये जो कहते हैं कि पहले मैं आपको एक पहले क्रिएटिव उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के साथ एसोसिएट करके बताता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, आप लोगों रियलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट आपने देखा था, वो क्या देखा, वो न्यू रियलिज्म क्या कहता है कि एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में एनार्की का, एंड दिस एनार्किकल स्ट्रक्चर फोर्स करता है स्टेट को टू बिहेव द वे स्टेट दे आर बिहेविंग इन टुडेज वर्ल्ड, वो उसको मजबूर करती हैं। लेकिन जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ नॉट प्योरली गवर्न्ड बाय पावर एंड इंटरेस्ट, जैसा कि न्यू रियलिस्ट कहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ नॉट गवर्न्ड बाय प्योरली पावर एंड इंटरेस्ट, बेसिकली दे आर गवर्न्ड बाय द फंडामेंटल नॉर्म्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फंडामेंटल नॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी नॉर्म्स हैं? वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर एक नॉर्म है, सॉवरेनिटी एक स्टेट की नॉर्म है जिसका एक्सेप्टेबिलिटी एट लार्ज किया गया, नॉन इंटरवेंशन एक नॉर्म है, इंटरनेशनल लॉ एक नॉर्म है, ये सारी नॉर्म्स हैं। तो स्टेट की जो कंडक्ट है, जो स्टेट का जो रोल है, इट इज़ नॉट बेसिकली बीइंग डिटरमिन्ड बाय पावर एंड पॉलिटिक्स एंड मटेरियल कैपेबिलिटीज, बल्कि द कंडक्ट ऑफ स्टेट इज़ बेसिकली बीइंग मूव्ड बाय, basically being created and affected by the fundamental norms in international politics। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नॉर्म्स हैं, और कौन कौन से हैं? सोवरेनिटी को भी नॉर्म कहते हैं, नॉन इंटरवेंशन को भी नॉर्म कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर को भी नॉर्म कहते हैं, सो मच सो फॉरेन पॉलिसी को भी नॉर्म कहते हैं, डिप्लोमेसी को भी नॉर्म कहते हैं ये नॉर्म्स हैं ये जो क्रिएट हुई और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी। नॉर्म्स मैंने आपको बताया था कि ये दे हेल्प टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशन के अंदर दो चीज़ें बताई थी, डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस, और सोशलाइजेशन क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू एम्ब्रेस देम, मींस सोशलाइजेशन व्हेन वी आर गोइंग टू अडॉप्ट देम। तो यही है ये सोवरेनिटी एक नाम थी,
ये डेफिनेट पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस थे, उनको एक्सेप्ट किया गया, इंटरवेंशन थी, एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद और ये ना, अब वो कहते हैं, मैं आपको वो मिसाल देख के बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये जो नॉन इंटरवेंशन है कि स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन द अफेयर ऑफ अदर स्टेट, इसके ऊपर, और चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर हो, चाहे वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, ये एक नाम है और ये नाम एग्जिस्ट कर रही है। और बाज़ को हम देखते हैं कि दिस नाम इज़ बेसिकली बीइंग वायलेटेड, इस नाम को वायलेट किया जाता है। तो इसके कहते हैं जो लोग वायलेट करते हैं वो भी जस्टिफाई करते हैं वाई वी आर गोइंग टू वायलेट इट, और जब वायलेट हो जाती है तो देयर इज़ अ पब्लिक ओपिनियन, एक खास किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, एंड अल्टीमेटली द वायलेटर इज सपोज टू गिव द जस्टिफिकेशन व्हाई द पर्सन वाज सपोज टू वायलेट इट। तो वायलेट जो हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ये वायलेट होती हैं, तो वायलेट इसलिए होती हैं, दे एग्जिस्ट बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर बीइंग वायलेटेड, और इसलिए ये डेफिनेट पैटर्न ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, एंड देन अल्टीमेटली द सोशलाइजेशन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस हैं विच आर अल्टीमेटली कमिंग इन द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। और ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो कंडक्ट ऑफ स्टेट इट इज़ नॉट बेसिकली बीइंग डिटरमिन्ड बाय द मटेरियल कैपेबिलिटीज और द इंटरेस्ट ऑफ द पावर, बेसिकली the conduct of state is basically being moved and molded by the existence of norms और in international politics। तो ये स्टेट का जो कंडक्ट है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दी एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्म्स इसको इम्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से होती हैं। ये एनार्किकल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं है, ये पावर कैपेबिलिटीज़ की वजह से नहीं है, और ये जो मैकेनिस्टिक फीचर जो बताते हैं कि इंटरनेशनल एनार्की है, वो हमेशा स्टेट को मजबूर करती है, और स्टेट उसी एक ख़ास तरीके से ही मजबूर होती है और एक ख़ास किस्म से वो जो वर्क करती है और अपने आप को सिक्योर करती है इन दिस एनार्किकल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, बल्कि नॉर्म्स, डिफरेंट नॉर्म्स हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं। तो ये उनका स्टे। अब ये जो इनका जो अगला जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके अंदर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं। एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, एंड देन द इंस्टीट्यूशंस, और फिर अनार्की, हाउ इफ़ द इंटरनेशनल सोसाइटी इज एग्जिस्टिंग देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ अनार्की ओवर देयर, और फिर उसके बाद दे बेसिकली टॉक अबाउट कि इफ़ अनार्की इज़ देयर और या इंस्टीट्यूशंस दे आर एग्जिस्टिंग, और उसके बाद दे टॉक अबाउट इफ इंटरनेशनल सोसाइटी इज एग्जिस्टिंग, तो फिर इंटरनेशनल कंडक्ट किस तरीके से हो रहा है। अनार्की नहीं है, कोई क्वासी मैकेनिस्टिक लॉज नहीं है, तो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी है बेसिकली, वो किस तरीके से मूव की जा रही है, वो किस तरीके से चलाई जा रही है दुनिया के अंदर। तो इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। पहली बात मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे शेयर मैनी सिमिलैरिटीज़ विद व्हाट यू कॉल ये जो इंग्लिश स्कूल था। तो इंग्लिश स्कूल भी कहते हैं कि डिस्पाइट द मटेरियलिस्टिक डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एनार्की, देयर इज बेसिकली अ सोसाइटी ऑफ स्टेट है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी यही कहते हैं कि नॉर्म्स, द प्रेजेंस ऑफ नॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड को इंटरनेशनल सोसाइटी कहती है रादर दैन दी इंटरनेशनल सिस्टम। जो सिस्टम होता है, सिस्टम इज़ बेसिकली बीइंग रेगुलेटेड बाय सम पार्टिकुलर लॉज, सम पार्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इनपुट होती है, कुछ आउटपुट होती है, कुछ फीड होती है, उनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है, और ये पार्टिकुलर लॉज के तहत चलता है जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। लेकिन ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, दे बेसिकली बिलीव के दिस इज़ नॉट द केस एक्चुअली, ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये जो द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, इट इज़ बेसिकली द इंटरनेशनल सोसाइटी। और ये इंटरनेशनल सोसाइटी की बेस करती है म्यूचुअल एग्रीड नॉर्म्स, कॉमन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जो सिस्टम है वो मैकेनिस्टिक लॉज के ऊपर चलता है। तो इस वजह से मैंने आपको फिर बताया कि ये जो इन्होंने का ये जो आइडिया है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्टेट्स जो है, इट इज़ मोर क्लोज टू दी व्हाट यू कॉल द इंग्लिश स्कूल के करीब है। लेकिन अब इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड इज बेस्ड जो इंटरनेशनल सोसाइटी है ये चली जा रही है। इसके ऊपर हैडले बुल जो कि मेन प्रोपोनेंट था इंग्लिश स्कूल का, उसने आइडिया दिया था, द सेम आइडिया इज बेसिकली बीइंग टेकन ओवर बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओनर ने इसको कहा, हैडले बुल का ये मानना था कि देयर आर 5 मेन इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल सोसाइटी, और इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर 5 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ एक इंस्टीट्यूशन है, डिप्लोमेसी एक इंस्टीट्यूशन है, वार एक इंस्टीट्यूशन है, एग्जिस्टेंस एंड रोल ऑफ द गारंटर ऑफ ऑर्डर, ये बेसिकली क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है। और अगर अब हम इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंस्टीट्यूशंस के क्रिएशन के पीछे क्या होता है? इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन के पीछे आइडियाज़ होते हैं।
इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन के पीछे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्म्स होते हैं, म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स होते हैं, म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स, कॉमन इंस्टीट्यूशंस। तो ये सेम आइडिया इज बेसिकली बीइंग borrowed by social constructivist with few modification, और वो मॉडिफिकेशन वो ये, और इसको अगर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर नॉर्म है जो अल्टीमेटली एग्रीड नॉर्म है और इंस्टीट्यूशन की शक्ल में निकली, इंटरनेशनल म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ की शक्ल में आया, ये इंस्टीट्यूशन डिप्लोमेसी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स हैं। आपको पता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है ये आज के ज़माने का नहीं है, ये प्री हिस्टोरिकल टाइम से चला आ रहा है, और उस वक्त भी जो डिप्लोमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो सफारतकार होते थे, जो एलची होते थे, उनको डिप्लोमेटिकल इम्यूनिटी हासिल होती थी। और जो वार है वो भी है, वो इसको भी वो इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेट पावर्स हैं और इस तरीके से। तो ये हैडले बुल का जो कॉन्सेप्ट है उसको सेम विद फ्यू क्वालिफिकेशन इज बीइंग बोरोड बाय सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, उन्होंने इसको लिया। अब इसके अंदर एनार्की क्या है? एनार्की, अगर ये इंटरनेशनल सोसाइटी है और एनार्की जो है, तो ये जो इंग्लिश स्कूल थे उन्होंने भी माना था कि एनार्की है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी मानते हैं एनार्की है, लेकिन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनार्की इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एनार्की गिवन बाय द रियलिस्ट। किस तरीके से? वो ये मानते हैं, जो इंग्लिश स्कूल वाले भी मानते हैं और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं कि एनार्की है। एनार्की का मतलब ये नहीं है कि द वर्ल्ड इज कंप्लीटली क्योटिक एंड वायलेंट, कि देयर इज अ लॉलेसनेस, ऑल आर अगेंस्ट ऑल, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ऑल आर अगेंस्ट ऑल, ऐसा वाली बात नहीं है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल नहीं है, क्योटिक लॉलेसनेस नहीं है, बल्कि क्या है, वो कहते हैं यस एनार्की इज देयर, कि देयर इज बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ सिंगल हायरार्किकल गवर्नमेंट। इस वजह से एनार्की है, ये क्योटिक और वायलेंट नहीं है जैसा कि रियलिस्ट का आइडिया है, बल्कि देयर इज बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ सिंगल हायरार्किकल गवर्नमेंट। इसी वजह से हम समझते हैं कि ये जो लॉलेसनेस हैं ये इस वजह से है, ये कि देयर इज बेसिकली एन एब्सेंस ऑफ हायरार्किकल गवर्नमेंट, नो सिंगल गवर्नमेंट इज एग्जिस्टिंग which is going to introduce promulgate some laws, and those laws they are being enforced, and those who are violate there is proper mechanism to protect and the uniformity of law। तो इस वजह से एनार्की है दुनिया के अंदर। लेकिन जो रियलिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया वो अगर उसको हम माने तो वो हमें प्रॉब्लमेटिक नज़र आता है, वो एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर हम इंग्लिश स्कूल का भी अगर हम मांग लें, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ने भी विद फ्यू क्वालिफिकेशन उसको एक्सेप्ट किया कि देयर इज़ बेसिकली नो सिंगल हायरार्किकल गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एनार्की इज एक्सिस्टिंग, तो कहता है ये भी जो डेफिनेशन है प्रॉब्लमेटिक नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर तो चलो समझ आता है एनार्की है, लेकिन रीजनल लेवल पे हमें एनार्की नज़र नहीं आती। यूरोपीय यूनियन है, प्रॉपर हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर आसियान हो गई है, दे आर गोइंग टू क्रिएट हायरार्की, वो हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं और दे हैव इंट्रोड्यूस अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ हायरार्की है। और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो अगर हम ग्लोबल लेवल के ऊपर भी देखें, हमें पता है कि अगर आप देखें इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, एग्रीड म्यूचुअली नॉर्म्स हैं, और यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट कर रही है। यूनाइटेड नेशन ने एक सॉफ्ट लॉ बनाया हुआ है जो इन शेप ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स की बुनियाद के ऊपर इंस्टीट्यूशंस की शक्ल इख्तियार कर गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हायरार्की। आपने देखा यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर देयर इज़ अ रोल ऑफ व्हाट यू कॉल सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है जो कि फोर्स को लेजिटिमाइज करता है। देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, there is a proper structure to impose and enforce law, and many a times the world has witnessed that under the United Nations Security Council Charter, UN peace missions, they were being moved to protect the basic fundamental rights of people on some territories in this world, and to bring regime change, to stop the ethnic cleansing। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है उसको वी कैन नॉट टेक इट इन इट्स एब्सोल्यूट सेंस, हम इसको एब्सोल्यूट सेंस में नहीं सकते। रीजनल लेवल पे भी वी फाइंड सम डिग्री ऑफ हायरार्की, और इंटरनेशनल लेवल पे भी वी फाइंड सम डिग्री ऑफ हायरार्की, वो हमें नज़र आता है। लेकिन जो असल कॉन्सेप्ट ऑफ एनार्की दिया है वो जनाब अलेक्जेंडर वेंट ने दिया है,
और वो उसने कहा है कि एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। तो बेसिकली एनार्की क्या है, व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, या एनार्की इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। और वो अलेक्जेंडर वेंट ने हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हुए ही केम अप विद दी 3 डिफरेंट कल्चर्स ऑफ एनार्की एग्जिस्टिंग इन दी वर्ल्ड इन द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। और वो कहता था कि अभी तक दुनिया में 3 डिफरेंट कल्चर्स ऑफ एनार्की दे हैव एग्जिस्टेड, उन्होंने एग्जिस्ट किया है इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इसमें वो कहता है एक हॉब्सियन कल्चर ऑफ एनार्की था, दूसरा लॉकियन कल्चर ऑफ एनार्की था, और तीसरा कैंशियन कल्चर ऑफ एनार्की है। लेकिन द सेम अंडरलाइंग आइडिया वही है, एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, या एनार्की इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब वो किस तरीके से बताता है, कहता है इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम अगर वी आर गोइंग टू ट्रेक डाउन द हिस्ट्री, व्हाट वी फाइंड वेरी फर्स्ट थिंग वाज द हॉब्सियन कल्चर ऑफ एनार्की। हॉब्सियन कल्चर ऑफ एनार्की के अंदर स्टेट्स जो थी, स्टेट्स वर एग्जिस्टिंग, 17th सेंचुरी तक ये चली है। और हॉब्सियन कल्चर ऑफ एनार्की, स्टेट्स वर एग्जिस्टिंग बट स्टेट्स दे व्यू ईच अदर एज एनिमीज, वे एक दूसरे को एनिमीज कंसिडर कर सकते। और बेसिक लॉजिक ऑफ हॉब्सियन कल्चर ऑफ एनार्की वाज बेस्ड ऑन वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, एंड स्टेट्स दे वर एडवर्सरी एंड वार वाज एंडेमिक। वार हर सूरत में होनी थी और हर सूरत में, एंड द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट वाज द ओनली वे टू सर्वाइव। दिस वाज what you call states, anarchy is what states make of it. हॉब्सियन कल्चर ऑफ एनार्की जो 17th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया, उसके अंदर वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, स्टेट्स दे यूज टू व्यू अदर स्टेट्स एज एनिमी, एंड दिस लॉजिक वाज बेस्ड ऑन द वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, एंड कॉन्फ्लिक्ट वाज वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट वाज द अल्टीमेट वे टू सर्वाइवल। और ये एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के अंदर थी, लेकिन अगेन सोशली कंस्ट्रक्टेड थी। अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, उस ज़माने के मुताबिक स्टेट ने इस तरीके से अनार्की कल्चर को क्रिएट किया। उसके बाद लॉकियन जो जो जॉन लॉक के कल्चर से एसोसिएट है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद शुरू हुआ और अनार्की चली और सेकेंड वर्ल्ड वार तक चली है, लॉकियन कल्चर ऑफ अनार्की। और ये क्या थी, स्टेट्स जो पहले के अंदर हॉब्सियन में स्टेट्स व्यू ईच अदर as enemies, और यहाँ पे states they view each other as rivals, but they used to show a certain degree of restraint against each other. जो states थे they were not willing to eliminate the other states, जैसा कि हॉब्सियन में होता था, वो war of all against all, और the survival of one state was directly depending on the elimination of the other state. और लॉकियन जो क्या है, लॉकियन कल्चर ऑफ एनार्की के अंदर अलेक्जेंडर वेंट कहता है कि स्टेट्स दे व्यू ईच अदर एज राइवल, नॉट एनिमीज, एज राइवल, एंड व्हेन दे यूज्ड टू परसीव देमसेल्फ द अदर स्टेट्स एज राइवल, देन इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ एनिमोसिटी कम हुई है, एंड दे यूज्ड टू शो अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट टुवर्ड्स अदर स्टेट्स, एंड स्टेट्स दे नेवर ट्राई टू सर्वाइव एट द कॉस्ट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ अदर स्टेट, rather they used to recognize other states, वो other state को recognize करते थे, they used to recognize the right of other states to exist, other वो acknowledge करते थे कि they used to recognize other states right to exist। और ये जो मैंने आपको बताया, it started with the Treaty of Westphalia और it ended with the start of with the end of Second World War। अब आते हैं कैंशियंस, इमानुएल कांट, कैंशियन कल्चर ऑफ एनार्की, और उसके अंदर वो कहते थे स्टेट व्यू ईच अदर एज फ्रेंड्स। हॉब्सियन में स्टेट व्यू ईच अदर एज एनिमी, लॉकियन के अंदर स्टेट दे व्यू ईच अदर एज राइवल, और यहाँ पे स्टेट व्यू ईच अदर एज फ्रेंड्स, एंड दे यूज्ड टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स पीसफुली, और वो अपने जो डिस्प्यूट थे उसको पीसफुली हल करते थे। दे यूज्ड टू सपोर्ट ईच अदर, and when they used to face a threat, they used to join hand in hand against their common threat, and this culture started to emerge after the end of Second World War, and more specifically in the liberal democracies। और ये liberal democracy के अंदर ये culture अभी भी चल रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉन्सेप्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनार्की है
वो क्योटिक और लॉलेसनेस और वायलेंट वाला रियलिस्ट वाला नहीं है, या एब्सेंस ऑफ हायरार्की या सर्टेन डिग्री ऑफ हायरार्की वाला भी नहीं है जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। और अलेक्जेंडर वेंट ने 3 कल्चर्स ऑफ एनार्की को बताया है इन द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, और उसने कहा ये एग्जिस्ट करता। अच्छा याद रखिएगा ये डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में एग्जिस्ट किया, लेकिन अब ज़रा गौर से यहाँ पे एक प्री क्वालिफिकेशन भी एक चीज़ की है, वो ये है कि ये जो कॉन्शियस कल्चर ऑफ एनार्की जो एग्जिस्ट कर रहा है ये कर रहा है लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन कुछ जो नॉन लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर अभी भी हॉब्सियन कल्चर या लॉकियन कल्चर ऑफ एनार्की एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, स्टेट्स मेक ऑफ इट। एनार्की क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो फाइनल वर्जन क्या हुआ इनका? फाइनल वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है, वो क्या है? तो एनार्की कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। एनार्की जो स्टेट्स हैं दे शेप एनार्की थ्रू देयर इंटरेक्शन। एनार्की को जो शेप करते हैं स्टेट अपने इंटरेक्शन से। एंड कंक्रीट फॉर्म ऑफ एनार्की प्रेवलेंट करती हैं हिस्टोरिकल एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ नेचर जो ऑफ स्टेट है, बिहेवियर ऑफ जो स्टेट है वो एनार्की को क्रिएट करती है, और एनार्की कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। और ये हमने आइडिया आपको पता कहाँ से इनको मिला? ये इनको मिला पोस्ट मॉडर्निस्ट है। बच्चों ये मेरी बात समझ आई है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? 3 कल्चर्स ऑफ एनार्की जो सोशल कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ एनार्की है।